Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need. Hello students, how are you all? A big hello to Fellowship Mission School students. As we all know that Fellowship Mission School and the team is doing excellent work under the guidance of our Honorable Principal, Miss Sunita ma'am. So let us commence today's class. Today we are going to learn about share capital, as you can see on the board. So how we are going to commence the chapter, what are the things that we are going to do? Let me tell you each and everything. So initial in this class, we are going to do some basic concept regarding share capital. I'll explain you some basics. Apart from that, we'll also discuss some of the basic terms. And then further, we'll discuss some basic journal entries. The whole chapter, if you notice, like you might have seen in the book, even though if you have not seen, I'll let you know that regarding the chapter, almost you can say that 90% of the chapter is based on journal entries. Okay, so without wasting time, let us commence the class, है ना. अभी first we'll understand what is share capital. देखिए क्या होता है ना, basically any limited company, take example of any company. चलो we'll take example of HCL, है ना. Now HCL limited, those firm in the end where limited is mentioned, those firm are basically, they arrange their share capital, or you can say they arrange their capital by issuing shares, है ना. तो जितनी भी कंपनी जिसके एंड में आप देखोगे लिमिटेड लिखा हुआ है, सो बेसिकली हाउ दे अरेंज देयर कैपिटल, दे अरेंज देयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स. मतलब इन शॉर्ट दे ऑफर द पब्लिक, वो जो है ना पब्लिक को ऑफर करते हैं, दैट आई एम ऑफरिंग यू कम एंड परचेस माय शेयर्स. हमारी कंपनी का जो है शेयर्स आप परचेस कर लो. अभी ये शेयर्स क्या होता है सर, वही तो नहीं समझ में आता हमको. रिगार्डिंग दैट आई विल टेक वन एग्जांपल, है ना. नाउ कंसिडरिंग दैट company needs a total, we'll take a very small amount to understand, है ना. Just so company needs a total capital of 1 crore from the market. अभी possible नहीं है that a single person, like it might not be possible that single person can give you 1 crore, है ना. अगर इसको हम exceed कर दें, maybe if we take 100 crore or 200 crore, है ना. So it is not possible to collect from a single person sometimes. So what happen, company जो है ना वो क्या करती है, इसको जो है ना they divide in small parts, है ना. मतलब कंसिडर कर लो एक एग्जांपल, ये जो है ना टोटल कैपिटल है फर्म का, कितना है ये, चलो कंसिडर करते हैं 1 करोड़, ठीक है ना. अभी कंपनी को मालूम है कि दिस इज द टोटल कैपिटल, तो एक काम करते हैं, दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, लेट्स डिवाइड दिस कैपिटल इनटू स्मॉल अमाउंट. स्मॉल डिविजन्स में इसको डिवाइड कर देते हैं. ये टोटल कैपिटल फर्म का था. अभी मैंने क्या किया, वी डिवाइडेड द कैपिटल इनटू स्मॉल डिफरेंट पार्ट्स. तो ये जो एक पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज शेयर कैपिटल. नाउ इट बिकम्स इजी फॉर द फर्म, वो फर्म के लिए बहुत इजी हो जाता है लोगों से कलेक्ट करना, है ना. सो इफ समबडी लाइक आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो व्हाट यू डू, बेसिकली आप जो है फर्म के कुछ कैपिटल परचेस कर लेते हो, है ना. 10% मैं परचेस कर रहा हूँ, मे बी 1%. रिसेंटली जो वी ऑल हैव सीन, लाइक अगर आपने न्यूज में देखा होगा दैट Facebook was very much interested in purchasing the capital of Reliance Jio. तो Facebook invested about 43,000 crore, है ना. उन्होंने बोला कि जो है we'll purchase 9% of the total shares of Reliance Jio and they paid an amount of I guess 43,000. तो अभी क्या हो रहा है, इन शॉर्ट दिस इज द टोटल कैपिटल, उसको हमने स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया. दैट स्मॉल डिविजन ऑफ दिस कैपिटल इज नोन एज शेयर कैपिटल, है ना. आई होप शेयर कैपिटल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको क्या है. एज वी मूव फर्दर a lot of new things you will come to, है ना. and we'll try to understand this chapter like you know, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हो सके उतना ज्यादा जो है we'll try to understand, because as I believe that like जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल हो regarding any chapter, वो जो है ना that it becomes in mind, it has been in our mind for a very long time, है ना. so देखते हैं पहले कि how a firm actually issues the capital. first of all, शेयर कैपिटल और शेयर मार्केट, ये जो है ना टोटल इट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सर ये कौन है, बेसिकली यू कैन से दे आर द गार्जियन ऑफ द शेयर कैपिटल मार्केट. any activity which is been done, or if you want to issue the shares, कुछ भी आपको करना है, you have to take the permission of SEBI. It is a organization, or you can say it is actually Securities Board of India. Board of India. It is an organization set up by the
सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। तो उसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट सपोज करते हैं जस्ट फॉर अ मोमेंट दैट एक एग्जांपल लेते हैं, एबीसी लिमिटेड है ना। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू इशू द शेयर्स इन द मार्केट। उनको ऐसा लग रहा है कि जो है वॉट एवर वी हैव डन नाउ वी नीड टू एक्सपांड, वी नीड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एबीसी लिमिटेड गोज टू सेबी। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है यहाँ पे। एबीसी लिमिटेड गोज टू सेबी, वो जो है ना अपनी एक फाइल रखते हैं कि देखो दिस इज आवर होल बिजनेस प्लान एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 110 करोड़ फ्रॉम द मार्केट, गिव अस परमिशन, परमिट करो हम अपने को कि जो है वी कलेक्ट 110 करोड़ फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, फर्दर व्हाट हैपेंस, सेबी जो है दे एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड फ्रॉम लाइक देयर बिजनेस प्लान एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव प्रोवाइडेड, देन सेबी जो है उनको परमिशन देती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वॉट एवर यू हैव डिमांडेड उतने का ही परमिशन मिल जाए, इट डिपेंड्स बेसिकली अपॉन योर पास्ट परफॉर्मेंस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इनटू दिस, है ना। सो अब यहां पे जो है क्या होता है कि जो है लुकिंग एट द बिजनेस प्लान, सेबी जो है परमिट करती है कि ठीक है वी अलाउ यू टू कलेक्ट सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द मार्केट। उन्होंने अलाउ किया है किसको, एबीसी लिमिटेड को। सो वॉट एवर इज एक्चुअली अलाउड बाय सेबी इज टर्म्ड एज authorized capital, और if I say simple में जो है authorized capital can be defined as that capital which a firm is allowed to issue in the market। सिंपल में आपको कितना परमिशन इशू करने का मार्केट में, whatever amount it is you have been permitted to issue, that amount or that capital can be termed as authorized capital, or simple में if I tell you that can be termed as a रजिस्टर्ड कैपिटल। अब इनके पास परमिशन है कि वो जो है मार्केट में जो है 100 करोड़ के जो है शेयर्स इशू कर सकते हैं, एंड दे कैन आस्क द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, है ना, कि जो है वी नीड, दिस इज आवर बिजनेस प्लान, प्रोस्पेक्टस एज वी ऑल नो, हमने 11th में देखा था दैट बिफोर यू इशू द शेयर्स यू हैव टू गिव द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आई गेस एवरीबॉडी नोस, है ना, अ डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग द पब्लिक टू परचेज द शेयर्स। तो वो क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, उनके पास अब पूरा परमिशन है कि आप 100 करोड़ एक्सेप्ट 100 crore you can take from the market। तो वो होता है authorized capital। सिंपल में अगेन आई एम टेलिंग यू, authorized capital means that capital which the firm is registered or which the firm is allowed to collect from the market। सिंपल में नेक्स्ट देखते हैं authorized capital के बाद नेक्स्ट है हमारा issued capital। अभी देखो कितने का परमिशन है सर, 100 करोड़ का। इट इज नॉट पॉसिबल, और it may be possible actually, if I say in a correct way, it may be possible that looking at the market circumstances company decides कि नहीं यार 100 करोड़ नहीं, हम जो है बस 80 करोड़ फिलहाल इशू करते हैं। परमिशन 100 करोड़ का, एनी टाइम यू कैन इशू 100 करोड़ शेयर्स इन द मार्केट, बट कंपनी डिसाइड्स कि फॉर अ मीनवाइल let's issue only 80 crore, maybe the market circumstances, the market situation is not good, or it can be any XYZ reasons। तो इशूड कैपिटल क्या है, बेसिकली इशूड कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच द कंपनी एक्चुअली इशूज इन द मार्केट। मतलब आपको परमिशन है 100 करोड़ का, बट व्हाट यू डिड, आप मार्केट में गए और आपने सोचा कि एक काम करते हैं, द करंट सर्कमस्टेंसेस सेज दैट कि जो है लेट्स इशू ओनली 80 करोड़। सर फिर वो 20 करोड़ दैट कंपनी मे इशू लेटर ऑन। So basically, in a simple way, if we look regarding issued capital, the simplest way it can be explained is that issued capital is that part of authorized capital which is offered for subscription। मतलब आपको परमिशन इतने का था, बट आपने जो ऑफर कितने का किया, 100 करोड़ का। That can be termed as what? That can be termed as issued capital। अब देखो जरूरी तो है नहीं that whatever is issued in the market एवरीथिंग इज परचेज बाय द शेयर होल्डर। पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है सर परचेज करना नहीं करना है तो डिपेंड्स अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, है ना। एंड एज वी ऑल नो दैट 90% मस्ट बी सेल। अगर आप जो है अपने शेयर्स इशू करते हैं तो 90% जो है वो लाइक पीपल मस्ट सब्सक्राइब दो शेयर्स, तो आप माइंड में आता है कि सर सब्सक्राइब तो आपने बताया ही नहीं, है ना। सो नेक्स्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट सब्सक्राइब कैपिटल। सो इशूड क्या था 100 करोड़, हमने इशू ऑथोराइज था 100 करोड़, हमने इशू किया 80 करोड़। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, सब्सक्राइब कैपिटल द बेस्ट वे वी कैन से इज दैट द टोटल कैपिटल विच एक्चुअली द शेयर होल्डर
wishes to purchase from the share capital market is known as subscribed capital. Subscribe का मतलब समझते हैं ना, परचेस करना, है ना. सो द सेम वे इट गोज हियर ऑल्सो. तो मैंने 80 करोड़ इशू किया है. इट माइट बी पॉसिबल दैट ओनली 79 और 78 करोड़ कैपिटल ही मैंने रिसीव किया और टोटल मार्केट से. तो सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच द शेयर होल्डर एक्चुअली परचेजेस फ्रॉम द शेयर कैपिटल मार्केट. तो हो सकता है दैट इट माइट बी पॉसिबल द होल 80 करोड़ इस सब्सक्राइब, या हो सकता है उससे कम हो. कभी कभी बहुत ज्यादा के एप्लीकेशन आ जाते हैं, है ना. इट माइट बी पॉसिबल 150 करोड़ 160 करोड़ का एप्लीकेशन आ जाए. सर लेकिन उतना हमने इशू ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बट एप्लीकेशन आ जाते हैं और फिर फर्म के पास ऑप्शन होता है, क्या करो, उनको रिजेक्ट करो. क्योंकि आपने तो बस आप ये सोचो ना, मार्केट में जो है इफ आई हैव लाइक दिस, ये जो मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है, इफ आई एम इशूइंग ओनली 10 ऑफ द प्रोडक्ट, पॉसिबल है क्या कि मैं इसको 11 सेल कर पाऊं मार्केट में? नहीं पॉसिबल है. ऐसे 10 ही प्रोडक्ट है मेरे पास, तो मैं 11 कैसे सेल कर सकता हूं, है ना. तो एंड जरूरी नहीं कि जो है इफ आई एम सेलिंग 10 ऑफ देम, तो जरूरी नहीं कि पूरा 10 सेल हो जाए, हो सकता है 80 सेल हो. द सेम वे आपको परमिशन है 100 का, आपने इशू किया 80. अब सब्सक्राइब कैपिटल मींस जितना आपका परचेज हुआ है. तो इट माइट बी पॉसिबल दैट आउट ऑफ 80 करोड़ आई हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑन ओनली 78 करोड़. फर्म लाइक रिलायंस एंड there are many firms such as Reliance and Tata you can consider. These firms, इनकी reputation market में the goodwill is so high that once they issue the shares, within few minutes उनके shares जो है over subscribe हो जाते हैं. मतलब जितना आपने issue नहीं किया उससे ज्यादा के application मिल जाता है. So I hope you are clear with the basic concept regarding authorized capital, issued capital and subscribed capital. Now let's move further. अब जो है ना एक थोड़ा सा like we'll look into this accounting way कि जो accounting way में जो है ना how this goes. See, basically whenever company issues the shares, ऐसे तो पॉसिबल नहीं कि मैं एक सिंगल शेयर परचेस करूं, बट मान लेते हैं कि मैंने एक सिंगल शेयर परचेस किया किसी भी फॉर्म का, है ना. जस्ट लाइक मैं गया और मैंने HCL के एक शेयर परचेस कर लिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल वी आर टेकिंग, है ना. प्रैक्टिकली सिंगल शेयर्स फॉर्म नहीं देती है आपको, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन इशूइंग द शेयर्स एंड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क इज डन. सो बेसिकली देयर आर सर्टेन लिमिट की चलो यू हैव टू परचेज एटलीस्ट 0.1%, 0.2% शेयर्स. अब आप ही सोचो, फेसबुक हैज परचेज्ड अराउंड 9% शेयर्स. 9% शेयर्स के लिए फेसबुक पेड 43,000 करोड़, सच अ ह्यूज अमाउंट, है ना. तो यहां पे जो है कंसिडर करते जस्ट फॉर एन एग्जांपल दैट वी हैव परचेज 1 शेयर ऑफ एनी लिमिटेड फर्म. नाउ पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी ये होती है ना कि दैट 1 शेयर व्हाट यू हैव परचेज, इट विल बी ईदर ऑफ 10 रुपीज और इट विल बी ऑफ 100 रुपीज. ये होता है नॉमिनल वैल्यू, मतलब बेसिक वैल्यू. या तो जो है शेयर्स का वैल्यू होगा 10 रुपीज या तो 100 रुपीज. ठीक है, मान लेते हैं द शेयर्स व्हाट आई हैव परचेज इज ऑफ 100 रुपीज. ठीक है, पर शेयर, सिंगल शेयर, एक शेयर. 10 शेयर्स खरीदूंगा तो इट मींस द टोटल वैल्यू वुड बी अराउंड 1000 रुपीज, राइट. सो 1 शेयर इज ऑफ 100 रुपीज. ठीक है, मैंने जो है शेयर्स परचेस कर लिए. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली पेमेंट इज मेड. जो शेयर्स मैंने परचेस किया उसका पेमेंट कैसे किया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी जर्नल एंट्रीज. और जर्नल एंट्रीज जो है इसी चीज से लिंक है. यहां से जो है ना बेसिकली लाइक बेसिक टर्म्स जो हमने पीछे किया वो तो इसलिए बिकॉज व्हेन क्वेश्चन इज गिवन इन एग्जाम तो उसको समझने के लिए बेसिक टर्म्स समझना बहुत जरूरी था. नहीं तो क्या होता है ना, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल, बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें. तो इसलिए पहले वो चीज मैंने क्लियर कर दिया. अब देखते हैं जरा थ्रू अकाउंटिंग लाइक कैसे क्या चीजें जा रही है इसमें. नाउ इफ अ शेयर इज ऑफ 100 रुपीज, 1 शेयर, कंपनी विल नेवर आस्क यू टू पे सिंगल अमाउंट. मतलब ये 100 रुपीज कंपनी एक साथ कभी नहीं आपसे मांगेगी. सर मतलब बेसिकली दिस 100 रुपीज कंपनी आस्क यू इन 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट. आपको 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट रहते हैं, उसमें आपको पेमेंट करना रहेगा बेसिकली. सो लाइक द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एवरी इंस्टॉलमेंट हैज अ नेम, है ना. जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा दैट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी. The second installment is known as allotment money. The third installment is known as first call. The fourth installment is known as final call. Sir, is it necessary that company is going to ask this 100 rupees in 4 different installment?
Well, in most of the cases, yes, company wishes to, like most of the cases you will see that company has given option नहीं बोल सकते, but company has basically asked the amount to pay in 4 different installment. In many cases we will see that company has asked only 3 installment में cover up कर देती है. पहला installment will be known as, in that case, application allotment ये हो जाएगा, फिर first call है, third installment हो जाएगा final call, है ना. That as we proceed वो जो है clear हो जाएगा, उसमें उतना doubt नहीं रहेगा. Right now what you have to understand that one share, it may be of 100 or it may be 10 rupees, doesn't matter. 100 or 10 ho, company is going to ask you that amount in 4 different installment, and every installment has its name. Regarding journal entry, what we have to keep in mind that every installment has 2 journal entry. हर एक installment का 2 journal entries होगा. So from here we come to know that there are basically 8 basic journal entry. So if you are clear with this 8 basic journal entries, 2 journal entries for each installment, take my words, पूरा chapter आराम से समझ में आ जाएगा, है ना. So let us just recall whatever we have done in today's class. Initially we came to know that company basically they take permission from the SEBI, and whatever they have been permitted to issue the shares, that is known as authorized capital. In short, authorized capital मतलब registered capital. इतना आपको registered आप issue कर सकते हैं. Now out of authorized, as we have seen that it might be possible that we are not okay with the market situation and we issue only certain part of authorized capital. So we decided कि चलो out of 100 crore we'll issue only 80 crore. It might be 90 crore, it might be 78 crore, whatever the case may be. Now out of authorized capital, or you say registered capital, whatever firm is actually issuing in the market is known as issued capital, है ना. अभी नेक्स्ट हमने देखा था issued capital के बाद subscribed capital. Subscribed capital बोलूं, और in a roughly if I say that purchase जो किया लोगों ने, the share from the share market is same only, because in subscribed capital, what is that part? Subscribed capital means that part of capital which the shareholder actually wishes to purchase from the market. जिन्होंने जो है actually subscribe किया, खरीदा है, that amount of that share capital is known as subscribed capital. Now after subscribed capital we have seen that basically a share can be, जो share है, it can be of 10 rupees or it can be 100 rupees, है ना. Considering that if it is of 100 rupees, doesn't matter, 10 हो या 100 हो, company is going to ask the money in 4 different installment. Every installment will have how many journal entries, because यहाँ से जो basically we are going to start our accounting. Each journal entry will have how many, each installment will have how many journal entries? 2 journal entries. So basically we'll see that there are 8 basic journal entries, and this 8 basic journal entries जो है, this will be like whatever sum you do, this 8 basic journal entries will be repeated every time, है ना. So in the next session we'll start with this basic journal entries. Thank you students.